पवन गुरु, पानी पीता, माता धरती महत, which means air is teacher, water is father, and earth our mother. Hello and welcome back to my channel, Pia the Explorer. If I ask you what was the connection between Gautam Buddha and Harmandir Sahib, most of us won't know about it. But there is a connection, which is Gautam Buddha meditated at the same very site many centuries back. I can bet कि आज तक आप में से बहुत लोगों ने गोल्डन टेम्पल के बारे में, मोस्टली उनके गोल्डन प्लेटेड डोम और डेली लाखों की संख्या में लंगर का खाना सर्व किया जाता है हर दिन, इसी बारे में सुना होगा, राइट? पर आज मैं जो आपको बताऊंगी उससे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा हरमंदिर साहिब के बारे में, एंड यू विल आल्सो बी बेटर इन्फॉर्म्ड. सो लेट मी स्टार्ट टुडेज एपिसोड विद अ फेमस सिख quote, which is, speak only that which will bring you honor. अमृतसर के नाम को देखा जाए तो उसका मतलब है अमृत, which means nectar of immortality, and sar is short for sarovar, which means pond. और माना जाता है जो भी इस सरोवर में डुबकी लगाता है, they can get rid of their bad karma. The Harmandir Sahib is also known as the Golden Temple, and the name Harmandir is composed of two words, Hari meaning God and Mandir meaning a temple or house. Harmandir Sahib के 4 दरवाजे हैं on all sides, क्योंकि हरमंदिर साहिब welcomes everyone from all 4 directions of the world, be it from any religion, it doesn't matter. सिर्फ अगर आप मेन प्रेमाइसेस के अंदर हो तो हेड कवर करना ना भूलना, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. यहाँ ग्रंथ को कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है and it takes 48 hours to complete reading it. आप सभी लोगों सुन सकते हैं on the speakers placed at various points, and it is live. It is a different experience, I must say. Why do I say it's a different experience? बिकॉज ग्रंथ यहाँ पर कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है, पर आपका ध्यान जब भी कोई पर्टिकुलर ग्रंथ के सेंटेंस पर पड़ता है तो कहा जाता है कि दैट सेंटेंस इज मेंट फॉर यू, एंड दिस अप्लाइज टू ईच इंडिविजुअल हु एंड्स अप हियरिंग अ डिफरेंट मैसेज बिकॉज इट इज मेंट फॉर देम. सरप्राइज, राइट? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट you can experience it, because we personally experienced it. When you enter inside the Gurudwara complex, it is a beautiful experience which cannot be expressed until you visit here. Once inside the premises, you have to move clockwise surrounding the sarovar and move towards the golden temple, जिसे परिक्रमा कहा जाता है. जैसे मैंने पहले बताया, this sarovar has its own significance. They say it is medicinal and many devotees take a dip in it to cure their ailments, karma, etc. And यहाँ पर 2 अलग sections है for taking a dip, for men and women. So stick around as we are about to dip into rich history and never heard fact about the Harmandir Sahib. When you enter inside the temple, यहाँ पर आप नोटिस करोगे काफ़ी डिवोटीज सेवा करने में लगे रहते हैं. जैसे कोई फर्श साफ करते हैं,
लंगर की सेवा में होते हैं, तो कोई किचन में सेवा करते हैं, या कोई ब्रास की ग्रिल्स पोंछते हैं, एक्सेट्रा। इसके पीछे की बात यह है कि सिखिज्म में परफॉर्मिंग सेवा मतलब इट डेमोन्स्ट्रेट्स बिलीफ इन इक्वालिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पीपल। बाय सर्विंग अदर्स, Sikhs show humility. Such is the length of this humility. You must know that एक ऐसा important fact है about हरमंदिर साहिब कि in 1581 when Guru Arjan initiated the construction of the Gurudwara, he planned it to level lower than the city in order to emphasize the humility and the need to erase one's ego to meet the Guru, as they have to climb down to visit हरमंदिर साहिब। वाओ! यहाँ पर आप जब भी आओगे तब मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द अकाल तख्त साहिब। ये यहाँ पर एक होली प्लेस है इनसाइड द गोल्डन टेम्पल, एंड इट इज टू डिनोट द टाइमलेस थ्रोन वेयर द एम्परर्स एंड किंग्स यूज्ड टू सिट। दिस प्लेस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सीट ऑफ द ऑलमाइटी। Akal Takht is the highest form of the temporal seat of Sikhism. Ath Sat Tirath. It is one of the holy spots located in the premises of Harmandir Sahib. When you would be moving out to the outer circumference, parikrama of the holy shrine, you would find an area of a pool of water next to the Dukh Bhanjani Beri. This confined area is known as the Ath Sat Tirath. And इसका काफ़ी बड़ा रिलीजियस महत्व है to the Sikh community who visit the temple. The significance of this holy place is that if you would take a dip in the holy waters with devotion and a selfless heart, then you could have the fortune to visit the 68 holy places of the world. Dukh Bhanjani Beri. This is a pious place situated at the Golden Temple in Amritsar, where the visitors consider it as holy, and the pond nearby is considered to take away all the sorrows and sufferings of life when the devotees would take a dip in its holy water. इसके पीछे एक कहानी है दुनी चांद खत्री और उसकी बेटी रजनी की। दुनी चांद यहाँ पर एक बड़ा लैंडलॉर्ड था और उनके 5 बेटियाँ थी। They were all very beautiful and talented. पर दुनी चांद का ईगो बहुत बड़ा था। एक दिन उसने अपने लड़कियों को पूछा कि उन्हें खाना और घर कौन देता है। उनमें से 4 लड़कियों ने कहा कि उनके पिताजी उन्हें खाना और घर देते हैं, पर रजनी, उनकी 5वीं लड़की ने कहा कि भगवान देते हैं। ये सुन के दुनी चंद क्रोधित हुए और उन्होंने रजनी की शादी एक लेपर यानी कि कौड़ी वाले व्यक्ति से कर दी। पर रजनी ने उसके पति को स्वीकारा और अपना घर बसाया। एक बार उसके पति ने उससे कहा कि वो एक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है। तब रजनी ने एक बड़ी टोकरी उसके पीठ पर डाली और अपने पति को उसमें रख तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ी। हरिद्वार, त्रिवेणी और कई अन्य इम्पोर्टेंट जगह पे गई, पर उसके पति का कोई इलाज नहीं हुआ। काफ़ी घूमने फिरने के बाद वो अमृतसर आई। इस जगह में पहुंची। यहाँ पर उसने बेर के पेड़ के नीचे आराम करने की सोची और दोनों यहाँ पर आके रुक गए। रजनी का आराम हो जाने के बाद वो फूल भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर जाने लगी। रजनी के पति ने तभी 2 कौवों को पानी में गिरते हुए रोटी का टुकड़ा लेने के लिए छलांग लगाते हुए देखा, और जब वो बाहर आए तब वो काले कौवे नहीं बल्कि सुंदर सफ़ेद हंस बन के बाहर आए। तब जाके रजनी के पति ने भी इस सरोवर में अपना हाथ छोड़ के बाकी शरीर को पानी के अंदर डुबाया, और जब वो बाहर आए तब he was totally cured of his leprosy. जब ही रजनी मंदिर से वापस आई तब उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पति अपने पैरों पर खड़े हैं। रजनी को लगा कि उसके पति की जगह कोई और ही खड़ा था।
तभी इस चमत्कार को प्रूव करने के लिए उसके पति ने अपना लेप्रेसी डिजीज़ वाला हाथ पानी में डुबाया, और जब उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला तो वो भी बाकी शरीर की तरह स्वस्थ हो गया था। रजनी बहुत खुश हुई और वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़े। Such is the extreme power of taking a dip into the सरोवर। In fact, आज भी वो बेरी का पेड़ यहाँ पर प्रेजेंट है and you can visit it inside the complex। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इफ़ यस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम @PiaTheExplorer। अगले एपिसोड में हम आप सबको बताएंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से दैट विल ब्लो योर माइंड्स। सो कीप एंजॉइंग सच फैंटास्टिक प्लेसेस एंड द स्टोरीज बिहाइंड देम which we bring to you in our every episode. Ja,